Hello students, in the first part of video we have studied that Rat Trap Paddler just visited the old man house where he was given shelter and along with food. Okay, besides that Rat Trap Paddler and old man together played Mazolish. Mazolish is a card game and the pronunciation of this one is Mazolish in English. Okay. Now just continue the story. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. Here the narrator wants to inform us that the old man was not only liberal in sharing his porridge and tobacco, यानी नरेटर हमसे कहना चाहता है कि जो ओल्ड मैन था वो सिर्फ इसी चीज़ में लिबरल नहीं था कि उसने अपना पॉरीज और टोबैको शेयर किया, बल्कि उसके साथ साथ और क्या शेयर किया, अपने कॉन्फिडेंसेस मीन्स सीक्रेट्स. The guest was informed. Here guest refers to Rat Trap Paddler. The guest was informed. So Rat Trap Paddler was informed that at once that in his old days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. Okay. The Rat Trap Paddler was informed, means was informed by whom? By his host. And who was his host? His host was the old man. ओल्ड मैन ने उसे कहा कि एट वंस इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी मीन्स व्हेन ही यूज्ड टू बी रिच. तो क्या था और वो कब वो रिच हुआ करता था? जब वह कहाँ पे काम करता था? राम्सजो आयरन वर्क्स में. एंड क्रॉफ्टर मीन्स व्हाट? क्रॉफ्टर मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ रेंटेड फार्म. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर. लेकिन अब क्या है? अब वो बहुत ज़्यादा दिन भर काम नहीं कर सकता है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज नाउ ही हैज़ ग्रोन ओल्ड. सो नाउ ही डिपेंड्स ऑन व्हाट? It was his cow which supported him. He just informed the paddler that now his living depends upon the cows. Yes, that bossy was extraordinary. Now students, just understand the term bossy. Bossy is in fact derived form of boss. Boss की मीनिंग क्या होती है? BOS is a Latin word जिसको कि यूज़ किया जाता है काऊ के लिए. तो उसने कहा दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. हियर द ओल्ड मैन रेफर टू हिज काउज. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट. एंड आफ्टर दैट ही जस्ट टोल्ड रैट ट्रैप पैडलर कि उसकी गाय जो है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और पिछले महीने उसने 30 kroner कमाए. क्रोनर यहाँ पे रेफ़र कर रहा है करेंसी ऑफ स्वीडन. एंड क्रीमरी यहाँ पर वो बोल रहा है कि शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी. क्रीमरी इज़ अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस चीज़ एंड क्रीम. इट मीन्स ही जस्ट सोल्ड द काउ मिल्क एंड गेट मनी फ्रॉम देयर. नेक्स्ट, the stranger must have seemed incredulous. Here incredulous means unbelievable, means he was not ready to believe. हो सकता है नरेटर हम लोगों को बोल रहा है कि हो सकता है कि stranger must have seemed. Stranger here refers to Rat Trap Paddler. Must have seemed incredulous. He was not ready to believe this. For the old man got up and went to the window. क्योंकि यहाँ for की मीनिंग क्या होगी? बिकॉज. इसलिए क्या हुआ? फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, वो उठा एंड वेंट टू द विंडो. टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल. जो कहाँ पे टंगा हुआ था? ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम. ठीक है, विंडो के पास एक नेल था एंड फ्रॉम दैट प्लेस दैट लेदर पाउच वॉज हंग. एंड पिक्ड अप, ही वेंट अप ओवर देयर. द ओल्ड मैन वेंट अप टू दैट विंडो नेल एंड he just took it out and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. और उसने उसमें से क्या निकाले? 30 kroner. 3 wrinkled means crushed 10 kroner bills. This he held up before the eyes of his guest. और उसने क्या किया? इसको अपने गेस्ट के सामने दिखाया. Okay, what was the reason? Because he wants him to make believe that he was telling the truth. Nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch. और उसके बाद उसने क्या किया? फिर से वापस नोटों को उसी में रख दिया. स्टफ्ड मीन्स किसी चीज़ में आप उसको टू फिल अप विथ समथिंग. उसने क्या किया? फिर से नोट को वापस उसी पाउच में रख दिया.
The next day both men got up in good season. Here good season means early in the morning. दूसरी सुबह क्या हुआ? Both here both refers to whom? The rat trap peddler and the old man. The next day both men got up in good season means both of them got up early in the morning. The crofter was in a hurry to milk his cows. Crofter का अपना काम था, he has to milk his cows, and the other man probably, here other man refers to whom? Refers to rat trap peddler. और शायद इसने सोचा, probably thought that he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. Gotten up means awake. इसको लगा कि जब head of the family उठ गया है तो उसे भी उठ जाना चाहिए, and that was the reason he also gotten up. They left the cottage at the same time. Who? The rat trap peddler and the old man. They left the cottage at the same time. दोनों एक ही समय कॉटेज से निकले. The crofter locked the door and put the key in his pocket. Crofter ने क्या किया? After locking the door, he put the key in his pocket, and the man with his rat trap and the man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. Here it is being said that next morning both the rat trap seller and the crofter woke up early, as the crofter was in a hurry to milk its cow. They both came out of the cottage at the same time, and after that rat trap peddler thanked the old man for his hospitality, because not only he had sheltered him but also also entertained him with the game of cards. See, but half an hour later, लेकिन क्या हुआ? Half an hour later, आधे घंटे के बाद, but half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. लेकिन आधे घंटे के बाद क्या हुआ कि rat trap peddler फिर से वही दरवाजे के सामने खड़ा था. दरवाजे के सामने मीन्स कहाँ? ओल्ड मैन्स हाउस, या फिर आप बोल सकते हो क्रॉफ्टर्स हाउस. बट सरप्राइजिंग, ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. वो सिर्फ कहाँ गया? विंडो के पास. स्मैश द पेन. स्मैश द पेन मीन्स बुरी तरह से वहाँ पे जो विंडो का पेन था उसको उसने तोड़ा. स्टक इन हिज हैंड, उसके बाद अपना हाथ खिड़की के घर के अंदर ले गया. एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner. और उसने इनफैक्ट उसको क्या लेना था, और उसने पेडलर ने क्या किया? उसने वहाँ से विंडो पेन के अंदर से अपना हाथ लगाकर उस पाउच को उतारा, और उसके बाद उसने उसमें से पैसे निकाले. ही टुक अवे द मनी, केप्ट इट इन हिज पॉकेट. ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट मीन्स केप्ट इट आप बोल सकते हो, स्टफ्ड भी बोल सकते हो, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनटू हिज ओन पॉकेट. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसके बाद क्या किया? After taking money and again he just hung the pouch very carefully back in its place where it was earlier hung, and after that he went away. वो वहाँ से चला गया. As he walked along here it is being said that as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब यहाँ पे नरेटर, what is narrator telling us? यहाँ पे नरेटर हम लोगों को बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि peddler was quite happy. The rat trap peddler was quite happy as he had money in his pocket. And he was very much proud, or you could say he was elated with his smartness. He realized, of course, what? लेकिन उसने एक चीज़ रियलाइज़ किया, that at first he dared not continue on the public highway. उसे ये लगा कि he then thought of walking through the forest. उसने वो हाईवे पे नहीं चला, ठीक है, because he was in fear of being caught by someone, and that's why must turn off the road. Turn off the road means रोड से अलग रास्ता लिया और कहाँ से चलना शुरू किया? into the woods. For woods the other word is forest. During the first hours this caused him no difficulty. मतलब पहले के कुछ घंटे उसे कोई परेशानी नहीं हुई. He was walking easily in the forest and he thought it's easy to go wherever he wants to. Later in the day it became worse. बट क्या हुआ? वर्स इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड. लेकिन स्थिति बुरी हो गई क्योंकि
for it was a big and confusing forest. Here narrator is saying कि at first he didn't face any problem, okay, and he thought that it was easy. But what happened later in day, ये उसके लिए मुश्किल हो गई और बुरा होते गया, क्योंकि जंगल जो था, woods was big and confusing forest. Why it was confusing? देखो, which he had gotten into, जिसमें वह गया था, ये जंगल कैसा था? Confusing था. What was the reason? See, he tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. क्या हुआ? He tried his level best to go in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. Here it is being said that he tried hard to walk in the right direction, but in vain. In vain means useless, as he found himself at the same place again and again because of those confusing paths. He walked and walked without coming to the end of the wood. Every time he tried, but every time he got failure. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और तब उसको लगा कि वह जंगल के एक ही पार्ट में घूम फिर के वापस आ जा रहा है. All at once, suddenly, अचानक से उसके दिमाग में कौन सी बात आई? All at once he recalled. What? Recalled his thoughts about the world and the rat trap. अचानक से उसके दिमाग में तब उस समय उसके दिमाग में ये बात आई. Since he was unable to get out of the forest, उसके दिमाग में क्या ये बात आई? वर्ल्ड के बारे में एंड द रैट ट्रैप के बारे में. उसकी ये थॉट, उसका ये नोशन कि पूरा वर्ल्ड जो है वो रैट ट्रैप है, एंड ह्यूमन बींग्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, like just like a rat tempted towards the bait. Now his own turn had come. अभी वो अपने आप को सोच रहा था कि अब उसकी बारी है और वो इस रैट ट्रैप में फंस गया है. ये रैट ट्रैप रेफर्स टू द फॉरेस्ट. यहाँ पे रैट ट्रैप अगर यूज़ होगा तो वो फॉरेस्ट के लिए होगा. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड, और वो उसको किस चीज़ ने टेम्प्ट किया था? बेट ने. और यहाँ पे बेट क्या था? वो 30 क्रोनर्स. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, और वो उसमें फंस गया है. द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, पूरा जंगल जो था जिसमें ट्रंक्स और ब्रांचेस थे, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप. उसको ऐसा लग रहा था कि ये जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, थिकेट्स हैं, फॉलन लॉग्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ट्रंक्स एंड ब्रांचेस हैं, ये सारे मिलकर इस प्रिजन को बना रहे हैं. हियर प्रिजन रेफर्स टू द फॉरेस्ट. और यहाँ जितने भी पार्ट्स थे, यहाँ पे नरेटर ये रेफ़र करना चाहता है क्योंकि ये सारी चीज़ें ही तो उसे कन्फ्यूजिंग बना रही थी उस जंगल को और उसके रास्ते को. ही वॉज अनेबल टू फाइंड हिज डायरेक्शन. सो उसको लगा कि ये जंगल उसके लिए इम्पेनिट्रेबल हो गया. इम्पेनिट्रेबल यानी इम्पॉसिबल, यानी जिससे होकर आप गुजर नहीं सकते हो. ओके, नेक्स्ट. Now the narrator informs us that it was late in December, since it was winter season and it was the month of December, so darkness was already descending over the forest. So it got dark easily. As it was the month of December, it got dark early. और साथ ही साथ क्या हुआ? As it got dark, this means this darkness increased the danger. क्या हुआ कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ते गया, खतरा भी उसका बढ़ते गया. एंड साथ में और क्या इंक्रीज हुआ? नॉट ओनली डेंजर, दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. उसके ग्लूम मीन्स उसके सैडनेस को भी बढ़ाया और उसके होपलेसनेस को भी. यहाँ डिस्पेयर किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? होपलेसनेस. क्या हुआ कि अब उसे लग रहा था, he was sad because he just lost in the woods. and the other thing, यहाँ पे hopelessness इस चीज़ की कि वो अब he had just lost all his hope to coming out of the forest. Finally he saw no way out. अब उसको लगा कि there was no way left. okay, and he sank down on the ground. ज़मीन पे बैठ गया, tired to death. It seems that he was that much tired. He was so much tired that it seems that he was going to die.
थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसका लास्ट मोमेंट आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पे अपना सर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। एंड इट वॉज द साउंड ऑफ वॉट? अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। ये साउंड किस चीज़ की थी? थम्पिंग, रेगुलर इंटरवल पे आ रहा था। ये थम्पिंग वर्ड यूज़ करते हैं, द साउंड ऑफ सम हैवी ऑब्जेक्ट बीटिंग लाइक हैमर और समथिंग एल्स। और तब उसे लगा कि देयर वॉज, मतलब ही वॉज श्योर दैट देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। ही वॉज श्योर, उसे कोई डाउट नहीं रहा कि ये क्या था, मीन्स अबाउट द थम्पिंग साउंड। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने ही जस्ट समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, मस्टर्ड मीन्स अपना सारा स्ट्रेंथ गैदर किया। और उसने सोचा, दोज आर द हैमर, सोचा नहीं, इनफैक्ट ही वॉज श्योर, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स। हैमर मीन्स हथौड़े की वो स्ट्रोक्स की आवाज़ें आ रही थी फ्रॉम एन आयरन मिल। ही वॉज श्योर कि ये कहाँ से आवाज़ें आ रही थी? बगल के किसी पास के नियर बाई के किसी आयरन मिल से। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसने सोचा कि नज़दीक में, ही मस्ट फाउंड सम पीपल नियर बाई। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. उसके बाद उसने क्या की? हिम्मत की, और उसके बाद अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। समन मीन्स गैदर्ड, मस्टर्ड, आप ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद उठा और स्टैगरिंग करते हुए किस डायरेक्शन में गया? साउंड के डायरेक्शन में। स्टैगर मीन्स टू वॉक विथ डिफ़िकल्टी। ही वॉज वॉकिंग विथ डिफ़िकल्टी बिकॉज ऑफ हिज टायर्डनेस, ओके, एंड बिकॉज ऑफ ऑल द मेंटल प्रेशर दैट ही वॉज feeling in that woods, and because of his helplessness, because of his sadness, okay. The Ramshaw Iron Works, which are now closed down, now narrator is informing us कि रामशो आयरन वर्क्स है, मीन्स प्रेजेंट सिचुएशन की यहाँ बात हो रही है। अब वो नहीं है, अब तो वो बंद हो चुका है। अभी प्रेजेंट की, अभी आप लोग बुक पढ़ रहे हो तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है कि अब वो बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं इस रैट ट्रैप पैडलर की, तो नरेटर उस समय की बात कर रहे हैं जब ये वर्किंग था, ओके। The Ramshaw Iron Works were, not so long ago, a large plant with smelter, rolling mill and forge. Here narrator is telling us कि Ramshaw Iron Works, जो कि अब बंद हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ लेकिन अब बंद हो चुका है, कि एक समय ऐसा प्लांट था जहाँ पे सारा स्मेल्टिंग का काम होता था, रोलिंग का काम होता था, रोलिंग मिल्क एंड फॉर्ज, ओके। फॉर्ज इज़ द प्लेस जहाँ पे मेटल को आप वो उसको मेल्ट किया जाता है, उसको शेप दिया जाता है, दैट इज़ फॉर्ज। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल। तो कहा जा रहा है कि सिंस इट वाज आयरन वर्क्स, यहाँ पे मेटल्स के काम होते थे, तो ऑब्वियसली क्या होता था कि यहाँ से जो सामान को एक्सपोर्ट किया जाता था वो किस में किया जाता था? बार्जेज एंड स्काउज में। एंड स्लिड डाउन द कैनल मीन्स कैनल से भी जाता था, रिवर आपका वाटरवेज से भी, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। और जो कहाँ पे जाके जाता था? ये नहर के रास्ते से जो बोट्स जाते थे सामान लेकर, वो इनलैंड लेक में जाते थे, लार्ज इनलेट लेक। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल, यानी समर टाइम में इसका जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का सामान होता था वो वाटरवेज से जाता था, ओके। और विंटर टाइम में द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। Now it is being said that in the winter time the roads near the mill, और रोड्स के रास्ते ही मैन्युफैक्चरिंग की सामान जाती थी। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि विंटर टाइम में रोड्स जो होते थे पास के रोड, वो पूरे ब्लैक हो जाते थे बिकॉज ऑफ कोल डस्ट। वहाँ पे चूँकि फॉर्ज था तो कोल वाला, वहाँ जो फॉर्ज था उसमें कोल यूज़ होता था, उसके कारण चारों तरफ मतलब वो ब्लैक डस्ट, कोल डस्ट भर जाता था फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। क्रेट्स मीन्स जहाँ पे वो फॉर्ज का मेटल्स के मेल्टिंग का काम होता था।